Hello students, in this video we are going to learn about some basic principle and technique that is broadly classified under General Organic Chemistry class 11th. So this is one of the fundamental topic to understand the reaction mechanisms in an organic chemistry. So in this sessions we are going to learn about inductive effect, and this is one of the first basic concept to understand the reaction mechanisms. So you can refer class 11th unit 12, some basic principle and techniques to clarify your concept. So myself Bakhtiar Khan, having 6 years of teaching experience, and I've been guiding students from 2016 onwards, and there are a good number of students who have made into good colleges of India and abroad. So with this note, I would like to start the session. So let's begin our sessions. So today we are going to start with a fundamental concept of chemistry, fundamental concept of organic chemistry. Let us understand what do you mean by reaction intermediate or an organic reactions. So in an organic reaction, if I talk about inorganic reactions, so how organic reactions take place? So organic reactions में क्या होता है कि we have a reactant, or we call it as substrate reactants, and that is called substrate, and we have a reagent. That is a reagent has a good role to play in determining the products of a chemical reactions, of an organic reactions. So reactants react with a reagent to form a reaction intermediate. So why we are interested to know about the reaction intermediate? क्योंकि इंटरमीडिएट से हमें क्या पता चलता है? मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट. वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर what about the reaction intermediate, and this reaction intermediate lead to the formation of a products and byproducts. हमें क्या देगा? ये products देगा plus byproduct देगा, and we are interested only in products. हम लोग किस में interested है? We are interested only in products, in these things. So why we need to know about the reaction intermediate? Intermediate से हमें क्या पता चलेगा? Intermediate से हमें पता चलेगा most stable product, right? So reaction intermediate से हमें पता चलेगा most stable product, and about the reactants is usually a carbon substrate, usually a carbon compound, usually a compound of carbon, that is a substrate, and reagent का बहुत बड़ा रोल है to determine the product of any reactions. So हम लोगों को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज में या हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे अबाउट अल्कोहल, फिनॉल, ईथर. द रिएजेंट हैज़ ए वाइडर रोल टू प्ले इन इट. अगर हम लोग रिएजेंट को अगर अच्छे से समझ लें कि ये रिएजेंट क्या करने वाला है रिएक्टेंट के साथ, तो वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शंस. ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट रिएजेंट से अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है? रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट को अटैक करता है. सबस्ट्रेट इज यूजुअली अ कंपाउंड ऑफ कार्बन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, एंड इंटरमीडिएट से हमें क्या पता चलता है? मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट. ठीक है. पॉसिबिलिटीज होता है कि जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है उसमें पॉसिबिलिटीज होता है माइनर और मेजर प्रोडक्ट बनने का. तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ए मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगा? द स्टेबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन इंटरमीडिएट. तो इंटरमीडिएट हमें फाइनल प्रोडक्ट देगा और बाय प्रोडक्ट देगा. वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, नॉट अबाउट द बाय प्रोडक्ट. सो अब चलते हैं हम लोग बॉन्ड फ्यूजन्स पे चलते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द बॉन्ड फ्यूजन्स. अब ये जो है हमारा क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस है. इसमें हमारा फंडामेंटली क्या होता है कि रिएक्टेंट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करता है एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है. तो हम लोग एक टर्म समझते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है. reaction mechanisms. Let us understand the reaction mechanism. Reaction mechanism में क्या होता है कि आपको रिएजेंट और रिएक्टेंट का यानी कि सबस्ट्रेट का जब रिएक्शन होता है, जब अटैकिंग रिएजेंट रिएक्टेंट को अटैक करता है,
तो उस दौरान क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड का टूटना होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. सो द मैकेनिज्म में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स cleavage of, या it involves cleavage of old bond and formation of new bond. Formation of new bond. ठीक है. तो क्या होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है कि क्लीवेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड होता है. And that lead to the formation of a product, and that lead to the formation of a product, to the formation of a product via intermediate, via reaction intermediate. reaction intermediate. reaction का मतलब क्या होता है, reaction intermediates, or better I should write it, reaction intermediate. Reaction via reaction intermediates. तो ये जो स्टेप जिसमें इन्वॉल्व होता है, ये जो स्टेप होता है जिसमें ओल्ड बॉन्ड का टूटना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सो दिस ऑल स्टेप्स इज द रिएक्शन मैकेनिज्म्स. सो रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स क्या करता है, क्लीवेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, and that lead to the formation of a product via reaction intermediate. So this complete step is called the reaction mechanisms. So we are going to understand the reaction mechanism. उसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ेगा. बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशंस, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक. सो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग टूल्स to understand the reaction mechanisms. So step by step in further lectures I am going to discuss about the Legos concept of reaction mechanisms. So in today's concept we are going to work on inductive effects. So before that, getting into an inductive effect, let us understand the bond fusion or cleavage or breaking. So let us understand what do you mean by the bond fusion. Let us understand bond fusion और क्लीवेज का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग होता है. क्लीवेज और ब्रेकिंग, राइट. तो हम लोग समझेंगे इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज होता है, एक हेटेरोलिटिक होता है, एक होमोलिटिक होता है. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. एक होमोलिटिक फ्यूजन होता है, होमोलिटिक फ्यूजन. होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि होमोलिटिक फ्यूजन्स में क्या होता है कि व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटता है, व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड breaks up in such a way that each atom of the each atom forming the covalent bond takes away one electron of the shared pair, ठीक है. इसमें क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, उसमें से हर एक एटम इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है. ठीक है. द एटम बियरिंग एन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स. क्या लिखेंगे, द एटम्स bearing an unpaired electron
bearing an unpaired electrons are called free radicals. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल्स बोलेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली इसमें क्या हो रहा है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो हमारे पास एक कंपाउंड है, कोवैलेंट बॉन्ड का एक कंपाउंड है, जैसे ए और बी हमारे पास एक कंपाउंड है. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये रख रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये रख रहा है. ठीक है, मैं अच्छे से एरो दिखा देता हूँ इसका. इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये रख रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये रख रहा है. तो फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स का और एक इधर का. जो एटम बियर कर रहा है फ्री रेडिकल, ये इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल. जो एटम बियर करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स. तो यहाँ पर दोनों फ्री रेडिकल्स हैं, क्योंकि इस एटम पर क्या हो रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन्स. होमोलिटिक फ्यूजन्स को कोई टेक्स्ट बुक में सिमेट्रिकल फ्यूजन्स भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सिमेट्रिकल फ्यूजन्स. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिकल फ्यूजन्स. तो इसमें क्या हो रहा है? कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो ब्रेकिंग हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, उसमें से इंडिविजुअल एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है. ठीक है, अब ये क्यों ले रहा है आई विल बी एक्सप्लेनिंग लेटर. ठीक है, दूसरा हमारा टाइप ऑफ फ्यूजन्स जो होता है इस तरह से ब्रेकिंग होता है. अब दूसरा टाइप ऑफ फ्यूजन्स जो होता है हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन्स. हेटेरोलिटिक फ्यूजन्स में क्या होता है कि द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, when a covalent bond break in such a way, लिखता हूं मैं, when a covalent bond break in such a way, breaks in such a way that both the electrons belonging to the shared pair is taken by one atom of the element, is taken by one of the atoms forming the covalent bond. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो ब्रेकिंग हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का जो ब्रेकअप हो रहा है, in such a way that both the electrons belonging to the shared pair is taken by one of the atom forming the covalent bond. मैं इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे हेटेरोलिटिक फ्यूजन्स में क्या कैटेगरीज हो सकता है कि जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है जो कोवेलेंटली अटैच्ड है. अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेता है, ये कंपाउंड ले लेता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके द्वारा लिया गया है? बी के द्वारा लिया गया है. तो बी पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, या हमारे पास ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि ए हमारे पास एक कंपाउंड है
अब B जो है हमारे पास दूसरा कंपाउंड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमारे पास A ले लेगा इस तरह से, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, A पर माइनस आ जाएगा, B पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट प्लस और माइनस का बन रहा है, जो प्लस और माइनस का बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, एंड दैट इज A प्लस। अगर A माइनस हमारा आता है तो दैट इज कॉल्ड कार्बन आयन, कार्ब अनायन। अनायन जो नेगेटिवली चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन आयन, कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन। तो हमारा जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यानी दोनों जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस तरह से लिया जाएगा, चाहे B पूरा ले ले या A पूरा ले ले। जब B पूरा ले लेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और A क्या हो रहा है कि डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो उस पर क्या होगा, उसका ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा, तो उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह इसका A जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा B से। तो ये पॉसिबल होता है तभी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो अपनी तरफ टेंडेंसी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। फाइनली बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, क्लीवेज कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज है कार्बोकैटायन और कार्बन आयन का बनाने का, ठीक है। तो रिएक्शंस मैकेनिज्म्स को समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है, हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा कि तो सबसे फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी हैव ए टॉपिक हियर, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या है हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। रिमेंबर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है along a सैचुरेटेड कार्बन चेन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सिंगल चेन, सिंगल बॉन्डेड चेन, along a सैचुरेटेड कार्बन चेन due to the presence of इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या जिसको EWG भी बोलते हैं हम लोग, EWG, या और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं EDG, ठीक है। रिजल्टिंग in the development of partial charges, partial charge दैट इज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड ऑन द ग्रुप कि आप कौन सा ग्रुप लगा रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड,
magnitude is called inductive effect or plus I effect. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, टेंडेंसी होता है. एक्चुअली में वहां पर कुछ नहीं होता है. ठीक है, एक्चुअली में बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता है, बस टेंडेंसी टू पुल और पुल इलेक्ट्रॉन्स या पुश इलेक्ट्रॉन्स, यही होता है. ठीक है, उसमें बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग ए कोवेलेंट कार्बन चेन, अलोंग ए सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या विड्रॉ कर सकता है. विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है, डोनेटिंग मतलब देता है. रिजल्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज. पार्शियल चार्ज क्या हो सकता है हमारा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट. तो अगर हम लोग क्रिस्प वे में बात करें, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे. तो ये क्या होता है, इट ऑपरेट्स इन द, हम लोग अगर इसको पॉइंट वाइज अंडरस्टैंड करें तो इट वर्क्स ऑन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, it always operates on the molecule. It always, inductive effect always operates in a molecule. ठीक है, तो सारा पॉइंट मैं जो लिख रहा हूँ ये डेफिनेशन से लिख रहा हूँ, ऑलवेज ऑपरेट इन ए मॉलिक्यूल. और इसमें क्या हो रहा है कि पार्शियल चार्जेस का डेवलपमेंट हो रहा है, पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है. पॉइंट वाइज याद करते रहिएगा, पार्शियल चार्ज इज डेवलप्ड. ठीक है, और दूसरा क्या है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है. और चौथी बात हम ये कह सकते हैं कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है. ठीक है, ये परमानेंट इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्रिएट करता है. तो ये परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं हम लोग इसको. ठीक है, और ये ऑपरेट करता है सिग्मा बॉन्ड पर, ऑपरेट्स इन ए सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि उसी का क्या होता है, माइग्रेशन, उसी का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑपरेट इन सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है. तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो आप लोगों को निकालने आता ही है, नहीं आता तो देखिए, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग बोलते हैं कि एक सिग्मा है इसके पास. अगर दो बॉन्ड लगा हुआ है इसी तरह तो एक सिग्मा एंड एक पाई है. ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, पाई सिग्मा. ठीक है, इस तरह से होता है. तो हमें इसका आइडिया ये है कि क्या होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. ठीक है, हमारा क्या क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट. तो इंडक्टिव इफेक्ट को अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज अगर पढ़ें तो ये क्या होता है, एक हमारा क्या होता है ये, एक सिग्मा एक पाई होता है. ठीक है, इसमें तो ध्यान रखिएगा. एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई. ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है. इट ऑलवेज ऑपरेट इन ए मॉलिक्यूल, पार्शियल चार्ज इज डेवलप्ड, और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और ये परमानेंट इफेक्ट शो करता है इन ऑपरेट टू सिग्मा. चलिए इसको हम लोग और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं. अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को समझ सकते हैं.
तो इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास ये CH3 मॉलिक्यूल है, अल्काइल है, CH3 इथेन मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ ये कार्बन है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, ये क्या है, पोलर है या नॉन पोलर कंपाउंड है? ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सेम है, बिकॉज कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, तो सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा, और नॉन पोलर जो कंपाउंड होता है उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को ऑपरेट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें, यहाँ पर CH3 हमारे पास है। अब CH3 की जगह पर क्या करेंगे, CH2 लगा देंगे और एक Cl लगा देंगे। जो मैंने Cl लगाया यहाँ पर, तो Cl क्या है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो कार्बन जैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है हमारे पास, ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस तरह से खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्जेस का डेवलपमेंट होगा वो डेल प्लस होगा और ये डेल टू हो जाएगा। और ये बोल दिया है कि जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जो डेफिनेशन लिख रहे थे, क्या हो रहा है कि पार्शियल चार्ज का जो डेवलपमेंट हो रहा था वो अरेंज हो रहा है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि डेल 1 प्लस जो होगा हमारे पास, वो उसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो ग्रेटर देन डेल 2 प्लस होने वाला है, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये जो है, ये जो हमारा डिस्टेंस, ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, ये कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। इट कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, are neglected after third carbon atom, ठीक है। इट कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। तो यहाँ पर ये जो है इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखेगा। सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट कहाँ पर दिखने वाला है, यहाँ पर दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका इफेक्ट थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है। अगर थर्ड कार्बन होगा तो इस इफेक्ट और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है सिस्टम से, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा एडजेसेंट कार्बन एटम पर, वहां से भी पुल आउट करेगा इलेक्ट्रॉन, उस पर भी करिएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज पार्शियल चार्ज जो होगा वो डेल 1 प्लस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डेल 2 प्लस। इसको हम लोग दो टाइप्स में पढ़ते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट, राइट। प्लस आई और माइनस आई क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो हमारे पास इसका टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माइनस आई इफेक्ट, फिर प्लस आई इफेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे माइनस आई इफेक्ट। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कब तक ऑपरेट करेगा, आफ्टर थर्ड कार्बन एटम इट कैन बी नेग्लेक्टेड। क्या करेंगे, आफ्टर थर्ड कार्बन एटम हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वहां से वो बहुत ही वीक हो जाएगा। पार्शियल चार्जेस जो क्रिएट होने वाला बहुत ही वीक इफेक्ट लाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग, अगर हमारे पास ये कार्बन एटम है, अगर हमारे पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पर हम लोगों ने एक ग्रुप लगा दिया है। अगर ये ग्रुप जो है हमारे पास, ये ग्रुप अगर हमारे पास, अगर ये ग्रुप हमारा क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्जेस क्रिएट होने वाला वो डेल 1 प्लस होगा, ये डेल 2 प्लस होगा, ये डेल 3 प्लस होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो डेल 1 जो होगा हमारा वो सबसे ग्रेटर होगा,
del 2 हमारे उसके बाद आएगा और del 3 हमारा उसके बाद आएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप भी बोलते हैं या -I ग्रुप भी बोलते हैं। इसको हम लोग -IB ग्रुप बोलते हैं। तो -I ग्रुप क्या होता है एक्चुअली में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा सिस्टम से, और ये टेंडेंसी होता है, ठीक है, टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन का पुलिंग टेंडेंसी होगा, और बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण होता है ये। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, या इसको हम लोग बोलते हैं -I ग्रुप। और जो इसका इंटेंसिटी ऑफ जो चार्जेस डेवलप होगा वो तुम्हारा क्या होगा, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 तक डिक्रीजिंग मैनर का होगा। तो del 1 प्लस यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, del 2 प्लस, उसके बाद del 3 प्लस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज द +I इफेक्ट। +I इफेक्ट, +I इफेक्ट, +I इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसे एक ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये डोनेटिंग इधर होगा, फिर इधर होगा, इस तरह से। और जो पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होगा del 1 माइनस, del 2 माइनस और del 3 माइनस। ठीक है, ये जो G ग्रुप है हमारे पास, ये G ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, +I ग्रुप भी बोलते हैं, और +I ग्रुप। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा, आफ्टर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, फिर यहाँ पर उससे कम, और यहाँ पर सबसे कम। अगर हमारे पास चार कार्बन आ जाएगा तो इसका इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाएगा, एकदम नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाएगा, या बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में बात करें मैग्नीट्यूड वाइज, तो del 1 माइनस इज ग्रेटर देन del 2 माइनस इज ग्रेटर देन del 3 माइनस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, +I ग्रुप भी बोलते हैं। अब हम लोग कुछ ऑर्डर पढ़ लेते हैं, जिस ऑर्डर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारे पास कुछ ऑर्डर है, लिस्टेड ऑर्डर है, उसको हम लोग मेंशन करते हैं एंड वी विल डिस्कस इट। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑर्डर -I सीरीज का ऑर्डर याद रखेंगे, -I सीरीज ऑर्डर। ध्यान रहे कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन टू बी 0। तो रेफरेंस हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और रेफरेंस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, और इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है, तो रेफरेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज 0, क्योंकि उसी को हम लोग रेफरेंस मान रहे हैं, तो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, वो 0 है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए हम लोग ऑर्डर को ध्यान रखते हैं, ऑर्डर में क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास ऑर्डर जो है, सबसे पहला हमारे पास है NF3, ग्रेटर देन NR3, ग्रेटर देन SR2, ग्रेटर देन -NH3। यहाँ पर भी कोई भी ग्रुप, ये ग्रुप है -I इफेक्ट शो करने वाला, यहाँ पर कार्बन चेन एसोसिएटेड होगा, यहाँ पर कार्बन चेन लगेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर है हमारे पास, इस ऑर्डर को तैयार करना, आप लोगों को मेमोराइज करना है। -NO2 -SO3H सल्फोनिक एसिड, CHO हो गया, CH हो गया, COH हो गया, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन ईथर, देन OH, अल्कोहल, अल्काइन,
then amine type, then benzene, then alkene, then हाइड्रोजन। माइनस आई सीरीज का ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम लोगों ने निकाला, और दूसरा ऑर्डर हमारे पास है, एक पहला ऑर्डर तो ये हुआ, दूसरा ऑर्डर हमारे पास ये है कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा। इस ऑर्डर को याद करना बहुत आसान है, NH3, ठीक है, PH3, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक। इसको हम लोगों ने अरेंज किया बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने इसको अरेंज किया है। दूसरा हमारे पास है CHO अल्डिहाइड, इमीन, क्या बोलते हैं इसको, इमीन बोलते हैं, अल्कीन। ये भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अरेंज किया है, ठीक है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इसको भी हम लोगों ने किससे अरेंज किया, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये माइनस आई सीरीज का ऑर्डर है, प्लस आई सीरीज का भी ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग, प्लस आई सीरीज का ऑर्डर, क्या क्या ऑर्डर है हमारे पास प्लस आई सीरीज का। तो इसमें सबसे पहला ऑर्डर हमारे पास है CH2, NH ग्रुप, O माइनस, देन COO माइनस, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल ग्रुप, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑर्डर है हाइड्रोजन फैमिली में T, D, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा वो सबसे पहले, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। सिलिकॉन हाइड्राइड और मिथाइल ग्रुप में SiH3 का ज़्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट, और फिर माइनस CH3 का होता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है, ये एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होगा। इस ऑर्डर को आप एकदम याद कर लीजिए। ऐसा बहुत सा ऑर्डर होता है, यही एक कंपाउंड नहीं है, इसका बहुत सा होता है फैमिलीज। तो वी आर कंस्ट्रेन टू दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हालांकि होता बहुत है लेकिन वी आर कंस्ट्रेन टू दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग इसी को प्रिपेयर करेंगे एंड वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। बोर्ड तो एग्जाम ऐसे ही पार हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, सो विल गेट एन आइडिया। चलिए कुछ हम लोग इसका डायरेक्शन कैसे, मतलब कि पुलिंग टेंडेंसी होता है या विड्रॉइंग टेंडेंसी होता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। वी हैव अ क्वेश्चन हियर, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट। इसमें इफेक्ट में हम लोग डायरेक्शन दिखाना कि किस तरह से डायरेक्शन होता है। कि सपोज वी हैव ए कार्बन एटम हियर CH3, CH2 and CH2 and we have CHO here। CHO क्या है, CHO हमारा माइनस आई इफेक्ट है। CHO क्या है हमारा, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सिस्टम से। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का टेंडेंसी किधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। ये इस तरह से विड्रॉ करेगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है। दूसरा, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन है,
साइक्लोहेक्सेन में अगर हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है, सपोज कीजिए NO2 लगा हुआ है, NO2 क्या है हमारे पास, NO2 हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। इसको यूज करते रहिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ऐसे करेगा सिस्टम से, इस तरह से विड्रॉ करेगा, ठीक है, इस तरह से विड्रॉ करेगा सिस्टम से। तीसरा हमारे पास जो है, हमारे पास तीसरा है, एक क्वेश्चन बनाते हैं, रुकिए। अगर हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है, इस तरह से हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास OH लगा हुआ है, सपोज कीजिए OH लगा हुआ है। OH क्या है हमारा, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। OH हमारा क्या दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट। ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सिस्टम से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सिस्टम से, इस तरह से विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सिस्टम देखा। एक हमारे पास इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो हमारे पास एक ग्रुप है, ये हमारे पास एक ग्रुप है, जैसे CH3, CH2, CH2, SiH3। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस तरह से, इस तरह से डोनेट करेगा। तो ये क्या, ये ग्रुप कैसा है हमारे पास, ग्रुप हमारे पास कैसा है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो हम लोगों ने डायरेक्शन कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का, किस तरह से ड्रॉइंग टेंडेंसी होता है, किस तरह से विड्रॉइंग टेंडेंसी होता है। और ये माइनस आई सीरीज और प्लस आई सीरीज को ध्यान रखना है। इससे कई और ज़्यादा ही ऑर्डर होता है, लेकिन वो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। वी आर मतलब कि हम लोग इतना ही पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट है। और हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या, किस तरह से विड्रॉइंग और डोनेटिंग टेंडेंसीज होता है, और कब विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो क्या होता है। And we learned about the bond cleavage, then we learned about the reaction mechanisms. So let us start with the application of inductive effect. अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो let us start with an application of inductive effect. Inductive effect. सबसे पहला एप्लीकेशन इसका है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड acids and alcohols. हम लोग क्या करना है, एल्फेबेटिक कार्बोक्सिलिक कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लोग लेते हैं, हमारे पास सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड को एसिड कब बोलते हैं, जब वो H+ दे दे, ठीक है। एसिड को एसिड कब बोला जाता है, जब वो H दे दे, ठीक है, H+ दे दे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि एसिड को अगर आप अगर किसी को आप एसिड बोल रहे हो तो उसमें H+ देने के बाद जो अनायन बनता है, जो अनायन बनता है हमारे पास, तो एसिड एसिड कब होता है, जब वो H+ दे दे। जब ये H+ दे देगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये अनायन बनेगा, ठीक है, CO-। अगर हमारे पास ये यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा क्या देगा, H+ देगा। ये आपस में कंबाइन करके फिर से ये बैक बना सकते हैं, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने शो किया है इसको। तो इसमें अगर हमको कंपेयर करना है कि सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो अच्छा एसिड किसे बोलते हैं,
जब ये जो हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, ठीक है, तो ये जो हमारा जो अनायन ग्रुप बन रहा है, अगर ये अनायन स्टेबल हो जाएगा, ये अगर अनायन स्टेबल रहेगा तो वी हैव गुड एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, एक अच्छा एसिड हो जाएगा, बी ए गुड एसिड, अच्छा एसिड हो जाएगा ये। तो ये अनायन जैसे स्टेबल होगा, जब ये H+ निकलेगा और यहाँ पर अनायन का जो फॉर्मेशन होगा, ये अगर अनायन जितना अच्छा स्टेबल होगा तो वो अच्छा एसिड बनेगा, अगर वीकली स्टेबल होगा तो वीक एसिड बनेगा। तो सारा स्टेबिलिटी जो है, स्ट्रेंथ ऑफ जो एसिड है, जो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो अनायन को अगर आप गौर से देखिएगा तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस अनायन को नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा जो इस चार्ज को कम करे, ठीक है। जब चार्ज कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। तो चार्ज का कम होना है, उस चार्ज का कम होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी जो बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा, चार्ज कम होने से बढ़ेगा। और चार्ज कम कैसे होगा, चार्ज को कम करने के लिए आपको ग्रुप वैसा लगाना पड़ेगा जो अनायन का जो चार्ज, जो अनायन जो क्रिएट हो रहा है उसमें उसको चार्ज कम करे। तो उसमें कौन सा ग्रुप लगाएं जो हमारा चार्ज को कम करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पूरा खींचेगा और ये चार्ज कम हो जाएगा, धीरे धीरे ये चार्ज कम हो जाएगा। जब ये चार्ज कम हो जाएगा तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, चार्ज को कम करना पड़ेगा। और चार्ज को कम करने के लिए जो ग्रुप लगाएंगे, जो हम लोग ग्रुप लगाएंगे वो क्या होगा, ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसको बोलते हैं, -I इफेक्ट को बोलते हैं, -I ग्रुप या -I इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से अनायन जैसे स्टेबल बना, तो अनायन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, चार्ज के कम होने से बनती है। और चार्ज कम कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा। उसी तरह का हमारे पास ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और इसमें अगर हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अल्कोहल लगा हुआ है, इस अल्कोहल में से अगर हम लोग H निकालते हैं तो वी गेट ए कंपाउंड GO- और H+, ठीक है। ये जो अनायन अगर स्टेबल हो जाए, ये अनायन स्टेबल हो जाए तो हमारा क्या होगा, ये अनायन अगर स्टेबल हो जाए तो वी गेट अ गुड एसिड, बेस्ट एसिड। और गुड एसिड भी से गुड एसिड, यहाँ पर एक अच्छा एसिड मिलेगा। एसिड को एसिड कब बोलते हैं, जब वो H+ देता है। तो ठीक उसी तरह अल्कोहल भी एसिड है अगर वो H+ देता है तो, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा ये अनायन जैसे स्टेबल होगा तो वी गेट ए गुड एसिड। अनायन को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप ऐसा लगाना पड़ेगा जो इसके चार्ज को कम करे। तो स्टेबिलिटी जो होगा हमारा, चार्ज स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा हमारा, चार्ज के कम होने से। और चार्ज कम कैसे होगा, इफ़ वी हैव ए ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ़ वी हैव ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, चार्ज को कम करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चार्ज को कम करेगा और स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, चार्ज को कम करेगा और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो चार्ज का कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अनायन को स्टेबल करना होगा, तो अनायन को स्टेबल करेंगे तो वो गुड एसिड बनेगा, अच्छा एसिड बनेगा। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वही है, अनायन को स्टेबल कर दे और स्टेबिलिटी से चार्ज को कम कर दे। चार्ज कम करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे। तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और वो गुड एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अगर हम इसको जनरलाइज करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा क्या है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। तो ये ऑर्डर हम लोग को ध्यान रखना है। ये इफेक्ट को अगर अंडरस्टैंड करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस एसिड का या किस अल्कोहल का ज़्यादा है, जिसका -I इफेक्ट ज़्यादा है, तो -I इफेक्ट डोमिनेट करेगा एंड दैट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंपेयरिंग अल्कोहल और कंपेयरिंग एसिड, ठीक है। तो ये फैक्ट हम लोग को ध्यान रखना है टू सॉल्व ए क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी सवाल ये भी बनता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, अगर हमें pK वैल्यू से कैलकुलेट करने के बाद किसका pK वैल्यू ज़्यादा है या किसका pK वैल्यू कम है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का एक और तरीका हमारे पास है।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने का क्या तरीका है, अगर पीएच हमको निकालना है, किसी भी कंपाउंड का पीएच कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा तो पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस होता है, ठीक है, लॉग एच प्लस होता है, ठीक है। जिस एसिड का जिसका एच प्लस ज़्यादा, अगर जिसका एच प्लस ज़्यादा होता है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, और पीएच वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हमको पीके वैल्यू निकालना है किसी भी कंपाउंड का, तो पीके वैल्यू क्या होता है, पीके वैल्यू क्या होता है, माइनस लॉग के वैल्यू। अगर कोई भी एसिडिक अगर के वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, लेकिन उसका पीके वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वी हैव टू ध्यान रखना है इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए, कंपेयर करने के लिए दिया जाए, या पीके वैल्यू कंपेयर करने के लिए दिया जाए, तो या एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो हमारा के वैल्यू भी बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो एच प्लस भी बढ़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन डिटरमाइन करता है एच प्लस और पीएच के बीच में, और ये रिलेशन डिटरमाइन करता है के और पीके के बीच में। अब हम लोग दो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे, हेल्प आउट करेगा हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व। तो किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है हम लोगों का, अनायन स्टेबल करना है, अनायन स्टेबल करने के लिए चार्ज को कम करना पड़ेगा, चार्ज को कम करने का कौन सा ग्रुप लगाएं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह अगर हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन चार्ज कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट, पीएच इज इक्वल टू इतना। इसमें हम लोगों को एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है कि इसमें हम लोगों को डीएनपी रूल लगाना पड़ता है। तो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, पहला तो ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर में, इसकी कैटेगरी में एक डीएनपी रूल है। पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे, फिर नंबर्स को, फिर पावर्स को, ठीक है। तो डीएनपी क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे, ग्रुप से देखेंगे, ये कितना दूरी पर है, ये कितना नंबर, कितना ग्रुप नंबर है, मतलब अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो कितना ग्रुप नंबर लगा, पावर मतलब शक्ति देखेंगे इसका पावर कितना है, ठीक है। तो डीएनपी रूल लगाएंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ का माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट से करेंगे तो वी विल गेट एन आंसर, राइट। से हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए कि हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ है, सीएच ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, और एक ग्रुप हमारे पास इस तरह से लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को डीएनपी रूल लगाना है और माइनस आई इफेक्ट से चलना है, ठीक है। तो ये बी आर और प्लस आई जो है तो हमारा कौन सा इफेक्ट देने वाला है, माइनस आई इफेक्ट देने वाला है, ठीक है। तो COH हमारे यहाँ पर कॉमन है, COH कॉमन है, COH भी हमारा क्या देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सिस्टम से। और तो अब इसमें हमको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, इस दोनों एसिड में हमको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कंपेयर कैसे करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इसका, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कॉमनलिटी क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर ये कॉमन है इसमें और ये भी कॉमन है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन चेन भी ठीक ठाक है दोनों तरफ, और ग्रुप हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो ग्रुप से है, जो हमारा ग्रुप है, डिस्टेंस क्या है, 1 2 दूसरा नंबर पर है, यहाँ पर भी दूसरा नंबर पर है, तो सेम हो गया, डिस्टेंस तो हमारा सेम है, ठीक है। अब चलते हैं नंबर पे, COH के बाद कितना ग्रुप लगा हुआ है, नंबर 2 पर एक ग्रुप लगा हुआ है, ये एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबर इज 1, ठीक है, एक ही ग्रुप लगा हुआ है, एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ग्रुप नहीं लिखते, कंफ्यूज हो जाइएगा। तो एक हमारे पास ब्रोमीन और एक हमारे पास आयोडीन बना हुआ है। अब हम लोग चलते हैं पावर पर, तो पावर पर देखें तो पावर में हम लोग क्या देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट है, इसका क्या है, माइनस आई इफेक्ट, दोनों में क्या है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अब माइनस आई इफेक्ट का पावर देखेंगे, तो माइनस आई इफेक्ट का पावर में अगर हम देखें तो BR का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई, BR का ज़्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट एज कम्पेयर टू माइनस आई। तो अब हमारा यहाँ पर सबसे
अच्छा एसिड कौन हो जाएगा? हमारा ये सबसे अच्छा एसिड ये हो जाएगा, क्योंकि Br का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को लगाना है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाता है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोग को देखिए कि हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, हमारे पास 2 ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है और एक हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है जिसमें इस तरह से फ्लोरीन है लगा हुआ है, इस तरह से फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ। हम लोग अगर डिस्टेंस से देखें, डिस्टेंस में क्या हो रहा है, OH हमारा क्या है, ग्रुप है, ये ग्रुप है हमारा, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। इस ग्रुप से हमारा कितना दूरी है, 3 है, 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3, जिसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3। ठीक है, तो नंबर भी सेम है, नंबर भी डिस्टेंस सेम है, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन 1 लगा हुआ है, यहाँ पर फ्लोरीन 1 लगा हुआ है और यहाँ पर ब्रोमीन 2 लगा हुआ है। तो नंबर 2 जो है वो ग्रेटर देन नंबर 1 है। ठीक है, ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप लगा हुआ है, 2 ग्रुप, ठीक है, डोमिनेट करेगा 2 ग्रुप, 2 ग्रुप, ठीक है, ये डोमिनेट करेगा। अब हम लोग चलते हैं पावर की तरफ। पावर तो दोनों माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी प्लस आई, ये भी माइनस आई, सब तरफ माइनस आई लग रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। लेकिन ये नंबर जो है ये डोमिनेट कर गया। यहाँ पर 2 ग्रुप लगा हुआ है, 1 और 2 ग्रुप, यहाँ पर एक ही ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर 2 माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है और यहाँ पर 1 माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है। इसलिए DNP रूल से जो हमारा जिसमें 2 ब्रोमीन लगा हुआ वो एसिड जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास इस तरह का है और यहाँ पर COH लगा हुआ है। COH के इस ग्रुप पर, इस पोजीशन पर एक हमारे पास जो कंपाउंड है, सपोज कीजिए कंपाउंड हमारे पास क्या है, COH लगा दिए, COH नहीं CHO लगा देते हैं, और एक हमारे पास इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है COH और यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। सपोज कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट देगा और ये CHO क्या देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट वाला क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। और क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ऐसे हमारा आंसर्स निकल जाएगा। अब pK और pH वैल्यूज जो हमारा पूछता है वो भी हम लोग सवाल देख लेते हैं, pH और pK वैल्यू। हमारे पास सवाल होता है कि कंपेयर pK वैल्यूज, कंपेयर pK वैल्यूज। तो pK वैल्यूज निकालने का क्या तरीका है कि pK इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग Ka वैल्यूज होता है। ठीक है, जिसका K वैल्यू ज़्यादा होता है उसका pK वैल्यू क्या होता है, कम होता है। जिसका K वैल्यू ज़्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ये तो लिखा था मैंने आगे, पीछे देखिए pK जिसका K वैल्यू उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा और जिसका pK वैल्यू कम, ध्यान रखना है इसको। अब इसी बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, अब सवाल बनाएंगे। हमें पूछा जा रहा है कंपेयर द pK वैल्यूज। तो चलिए हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है जिसके पास OH अटैच है और यहाँ पर हमारे पास CH3 है और एक हमारे पास कंपाउंड है इस तरह से, यहाँ पर OH अटैच है और यहाँ पर
CD3 है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि ये दोनों क्या ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई दिखाएगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन प्लस आई इफेक्ट में CD3 का प्लस आई इफेक्ट CD3 का क्या होगा, ज़्यादा होगा, CD3 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH3 का, है ना। CD3 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH3, राइट। तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होगा। तो जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वो क्या होगा, सबसे वीक एसिड होगा। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3 जो हो जाएगा हमारा वो सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है। प्लस आई इफेक्ट जिसका कम होता है, जिसका प्लस आई इफेक्ट कम होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट कम है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका तो Ka वैल्यू ज़्यादा होगा और Pk वैल्यू कम होगा। तो अगर हम Pk वैल्यू का कंपैरिजन करें, Pk वैल्यूज़ में अगर हम लोग चलें तो इसमें क्या होगा, तो इसका Pk वैल्यूज़ में ये OH जो है हमारा सबसे कम होगा Pk वैल्यूज़ में, ठीक है, ये सबसे कम होगा एज कम्पेयर टू दिस CD3, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर किया Pk वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, Pk वैल्यूज़ को कंपेयर किया, ठीक है। तो ये है Pk वैल्यूज़ को कंपेयर किया, तो कंपेयर किया Pk वैल्यूज़। अब हमारे पास एक दूसरा सवाल होता है, कंपेयर द pH वैल्यूज़। तो दूसरा सवाल हमारे पास बनता है कंपेयर pH वैल्यूज़। तो pH वैल्यूज़ कैसे निकलता है, तो pH वैल्यू जो निकलता है, pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस log H प्लस, ठीक है। log H प्लस में क्या होगा, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका H प्लस ज़्यादा होगा और pH क्या होगा, कम होगा। यही तो होता है एसिडिक में, है ना। अब चलते हैं इसको हम लोग और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कंपेयर H प्लस, तो कंपेयर H प्लस करो या एसिडिक स्ट्रेंथ करो। तो हमारे पास एक सवाल है कि जैसे ये COH ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, COH ग्रुप, और यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन है और एक ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है COH ग्रुप और दूसरा ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है CN ग्रुप। तो यहाँ पे क्या कॉमन, सबसे कॉमन हमारे पास ये है COH है, ये भी COH है, ठीक है। हमें H प्लस को कंपैरिजन कराना, तो ये क्या है हमारे पास, माइनस आई इफेक्ट, ये क्या है हमारे पास, माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर किसका ज़्यादा है, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर किसका ज़्यादा है। अगर हम कंपैरिजन देखें तो ब्रोमीन का कम है और CN का ज़्यादा है। तो CN का जो माइनस आई इफेक्ट है वो ग्रेटर देन ब्रोमीन है। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो यानी कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, है ना। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ब्रोमीन है और CN है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ जिसका ज़्यादा है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। तो अगर H प्लस का ऑर्डर लिखेंगे हम लोग, H प्लस का ऑर्डर लिखेंगे तो H प्लस का ऑर्डर भी वही हो जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है और एसिडिक स्ट्रेंथ और H प्लस ऑर्डर सेम है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, अगर हम H प्लस का ऑर्डर लिखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास जो बनेगा इस तरह का कंपाउंड बनेगा, COH Br लेस देन COH CN, ठीक है। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये हमारा H प्लस का ऑर्डर है। H प्लस ऑर्डर और एसिडिक स्ट्रेंथ का pH का कंपैरिजन करेंगे तो, अगर pH का कंपैरिजन करेंगे तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है उसका pH कम होता है,
तो pH का अगर हम लोग कंपैरिजन करें ये कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि टू कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स। दूसरा पार्ट है इसमें, टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमीन। टू कंपेयर the basic strength of aliphatic amines के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ का, वो लुईस बेस का बात करेंगे। लुईस बेस यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो लुईस बेस कौन होता है? सबसे अच्छा लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बहुत रेडली, बहुत अच्छे से डोनेट करता है, तो वो एक अच्छा लुईस बेस होता है। जो पुअरली डोनेट करता है लुईस इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वीक लुईस बेस। तो जैसे हमारे पास हम लोग अमीन्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन में हम लोग 1 डिग्री अमीन देखेंगे। 1 डिग्री अमीन, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, क्योंकि इस N से एक R जुड़ा हुआ है। दूसरा हम लोग देखेंगे 2 डिग्री अमीन में, इसमें क्या करेंगे, 2 डिग्री अमीन में ये N, ये R लगा, ये H लगा रहेगा, ये 2 डिग्री अमीन है, इस N से 2 R जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 डिग्री अमीन के बारे में अगर हम लोग देखें तो 3 डिग्री अमीन हमारा कैसा दिखेगा, R N R R, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में। ठीक है, तो इस तीनों अमीन्स में हमारा बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपैरिजन करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटीज पर कंपैरिजन करेंगे। जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो अच्छा है, वो एक अच्छा बेस होगा और उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये N ग्रुप है, ये N ग्रुप है, इस N के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई ऐसे ग्रुप को देना चाहेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसीज है। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि उस पर एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो इसकी पूर्ति कौन करेगा, इसको पूर्ति नाइट्रोजन करेगा विद डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा ये कंपाउंड क्या बनेगा, इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड बनेगा जो H+ से, और यहाँ पर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसको जो हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिनोट किया, इसकी स्टेबिलिटी को कैसे समझेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को हम लोग 2 कैटेगरीज में समझेंगे, एक गैस फेज में और एक एक्वस फेज में। ठीक है, गैस फेज मतलब जिसमें एक्वस मीडियम ना हो, बस वही, और एक्वस में जिसमें हम लोग, एक्वस मतलब वो लिक्विड मीडियम में या वो पानी के मीडियम में रखे हुए हैं, उसमें हम लोग उसका बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। तो सबसे पहले विल अंडरस्टैंड इन गैस फेज। तो गैस फेज में क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो अमीन है, गैस फेज में क्या हो रहा है कि अगर हम एक ऐसा अमीन चूज़ करें जिसका इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ेगा, इस पर एक ऐसा ग्रुप लगा दें जिसका, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी मोर रेडली अवेलेबल करेगा। तो इसमें कौन ऐसा ग्रुप लगाए जो हमारा इसका इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो हम एक ऐसा ग्रुप चूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप चूज़ करते हैं, जैसे कि R, ये R, ये R। तो ये R क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अब फाइनली इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा, इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा। जैसे अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा तो ये एक अच्छा बेस हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह हमारा अगर 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री, अगर हम लोग 2 डिग्री अमीन्स का बात करें तो 2 डिग्री अमीन्स में हमारे पास ये N, ये R और यहाँ पर H है।
तो हमारे पास ये लोन पेयर है, इसके अवेलेबिलिटी को कौन बढ़ा रहा है, ये 2R बढ़ा रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये दो R जो है हमारा ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और इसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ये हमारा कौन सा है, 2 डिग्री अमीन है। उसी तरह हमारा 1 डिग्री अमीन होता है। 1 डिग्री अमीन में क्या होगा, हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, इसमें क्या होगा, NH2 होगा और ये R होगा, ठीक है। इसका लोन पेयर एक ही तरफ से बढ़ रहा है, ये ग्रुप से बढ़ रहा है, तो ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखें कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी किस में है, 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा है इसमें, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, R 3 ग्रुप लगा हुआ है और ये R क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, डोनेटिंग ग्रुप will increase the availability of lone pair, availability of lone pair इसकी लोन पेयर अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो ये इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना भी ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा हमारा क्या होगा, लोन पेयर अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर 3 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है और यहाँ पर 1 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप इसमें लगा हुआ है, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, इसमें 1 अल्काइल ग्रुप है। तो इसका जो ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का वो क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कोई भी ग्रुप रहे, R की जगह पर कुछ भी रहे, इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, फॉर एनी R, कोई भी R का इथाइल रहे, मिथाइल रहे, प्रोपाइल रहे, ब्यूटाइल रहे, तो सब में 321 आएगा हमारा गैस फेज में। अब हम लोग चलते हैं एक्वस फेज में। एक्वस फेज में क्या होता है देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इन एक्वस फेज, इन एक्वस मीडियम, एक्वस फेज। तो एक्वस फेज में देखिए क्या होता है, अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल देखें, 1 डिग्री अल्कोहल देखते हैं पहले। तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या हो रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास है NH2, ठीक है। इसके बाद लोन पेयर है, ये लोन पेयर H प्लस आयन को देगा क्योंकि इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है। ये लोन पेयर इसको देगा, जैसे ही लोन पेयर इसको देगा तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा, ये फाइनल जो कैटायन जो बनेगा इस तरह का बनेगा, RNH, ठीक है, ये H, ठीक है। क्योंकि ये एक्वस मीडियम है, तो एक्वस मीडियम में क्या होगा, वाटर का अवेलेबिलिटी होगा, तो वाटर हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो है, ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, OH2। ये जो H है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, वाटर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानते हैं ना किसके किसके बीच में होता है, हाइड्रोजन और FON के बीच में बनता है, ठीक है। बेसिकली यही होता है, हालांकि इसका एक्सेप्शनल भी है, वी विल लर्न इन केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, इसको स्टेबल करने के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इन एक्वस फेज में क्या हो रहा है कि सॉल्वेशन बढ़ रहा है। तो सॉल्वेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मोर एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो फाइनली क्या होगा, मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। जैसे ही मोर प्रोडक्ट बनेगा तो स्टेबिलिटी, क्योंकि कंपाउंड का ज़्यादा फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टेबल की तरफ जा रहा है, इसीलिए सॉल्वेशन प्रमोट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ेगा और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये था हमारा किसका, 1 डिग्री अमीन का। उसी तरह अगर हम लोग 2 डिग्री अमीन्स को देखें, ये 1 डिग्री का, अगर हम लोग 2 डिग्री अमीन्स को देखें, यहाँ पर क्या होगा, RNH, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस
वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करेगा एंड फाइनली यहाँ पर क्या होगा, R2NH यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, ठीक है। तो और एक H हमारे पास कहाँ पे है, R2NH। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा OH2 के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, सॉल्वेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम लोग 3 डिग्री अमीन्स को देखें तो 3 डिग्री अमीन्स में क्या हो रहा है, देखिए R3N है, R3N, ये 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन में R3N, ये लोन पेयर है, ये H प्लस को देगा। तो फाइनली व्हाट वी विल गेट, ये लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, तो व्हाट वी गेट R3NH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही हो रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है और यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर देखिए 3 हो रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब देखिए अगर हम लोग सॉल्वेशन से चलते हैं, अगर हम लोग सॉल्वेशन से चलते हैं तो 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। अगर इफ वी गो बाय सॉल्वेशन, इफ वी गो बाय सॉल्वेशन, तो सॉल्वेशन से अगर हम लोग चलें तो सबसे अच्छा बेसिक कौन होगा, 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेशन ज़्यादा है, सॉल्वेशन ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, ठीक है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो मोर फॉरवर्ड रिएक्शंस फेवर होगा ली चैटेलियर से, और हमारा क्या होगा, मोर एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। अगर हम लोग चलते हैं, इफ वी गो बाय इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, तो हमारे पास क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस R 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अगर हम लोग सॉल्वेशन से चलते हैं तो वी गेट 1 to 3 एंड इफ वी गो बाय प्लस आई इफेक्ट वी गेट 3 to 1, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमारा, बेसिक स्ट्रेंथ जो है हमारा प्लस आई इफेक्ट से फेवर करता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट से फेवर करता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखना है आपको, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ, अब यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं अपने को प्रॉब्लम्स की ओर। अब इस दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, ये दोनों जो है सॉल्वेशन और आपस में कंपटीशन करेगा। इफ अगर R हमारा मिथाइल है, अगर R हमारा मिथाइल है, अगर हम लोग R यहाँ पे जो चूज कर रहे हैं, ये R जो देख रहे हैं आप, इफ R अगर हमारा मिथाइल है, इफ R इज मिथाइल देन वी हैव ऑर्डर 213 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये क्या है, आफ्टर सेटलमेंट फाइनल सॉल्वेशन और प्लस आई इफेक्ट के बीच में जो है टग ऑफ वॉर हुआ और फाइनली दे गॉट सेटल्ड एट 213। अगर इफ R इज इक्वल टू इथाइल ग्रुप रहे देन वी गो बाय 231, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री आई मीन। अगर इफ R इज अल्काइल ग्रुप, इफ R इज सपोज कीजिए प्रोपाइल हो या ब्यूटाइल हो और ब्यूटाइल हो, तो उसके लिए हम लोग का जो ऑर्डर होगा वहाँ पर डोमिनेट क्या करेगा, हमारा डोमिनेट करेगा प्लस आई इफेक्ट, और हमारा ऑर्डर जो हो जाएगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्वेशन डोमिनेट कर रहा है, सॉल्वेशन डोमिनेटिंग, ठीक है, सॉल्वेशन डोमिनेट कर रहा है। सॉल्वेशन से डोमिनेशन से क्या हो रहा है, हमारा
हमारा यहाँ पर 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री मीन्स आ रहा है. इन केस ऑफ इथाइल 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री आ रहा है. इफ आर इज प्रोपाइल ब्यूटाइल और एनी फर्दर अल्काइल ग्रुप, प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल जो भी है, उसके लिए हम लोग का ऑर्डर जो आएगा वो 321 आएगा. 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री. ये हम लोगों ने किस में बात किया है? एक्वस फेज में बात किया. गैस फेज में हमेशा चाहे कोई भी ग्रुप रहे, आर इज इक्वल टू मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो भी रहे वो 321 रहेगा. 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रहेगा. एक्वस फेज में आपको ध्यान रखना है 213 231. आर इज इक्वल टू मिथाइल रहेगा तो 213, आर इज इक्वल टू इथाइल रहेगा तो 231. इस तरह से हम लोगों को चलना है. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा. और अब हम लोग के पास थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ comparing the stability of कार्बोकैटायन, कार्बन आनायन एंड फ्री रेडिकल. ठीक है, तो जैसे अब हमारे पास ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन का, अब इसके स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को कम करना पड़ेगा. ये जो चार्ज जो डिनोट हो रहा है, ये जो चार्ज जो प्लस आ रहा है कार्बन पर, उसको हमको कम करना है. इसको कम करने के लिए कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा? प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस आई इफेक्ट वाला. तो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप यहाँ पर डोनेट करेगा, तो यहाँ पर प्लस आई लगाना पड़ेगा. तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस आई इफेक्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो उससे क्या होगा? चार्ज कम हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो होगा हमारा कार्बोकैटायन का, वो स्टेबिलिटी कैसे ज्ञात होगा? हमारा प्लस आई इफेक्ट से. और स्टेबिलिटी घटेगा कैसे? माइनस आई इफेक्ट से. ठीक है, इस तरह से. ठीक, उसी तरह कार्बन आनायन होगा. कार्बन आयन को हम लोग कैसे करेंगे? कार्बन आयन हमारे पास क्या होता है? C माइनस. चार्ज को कम करना है, तो चार्ज को कम करने के लिए कौन सा ग्रुप लगाएं? माइनस आई इफेक्ट लगाएं. माइनस आई इफेक्ट. तो यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लगाएं, यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लगाएं, यहाँ पर माइनस आई ग्रुप. तो स्टेबिलिटी का कैसे कंपेयर करेंगे? स्टेबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होगा. ठीक है, उसी तरह फ्री रेडिकल है. तो फ्री रेडिकल में क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे ये हमारे पास फ्री रेडिकल है. इसमें देखिए यहाँ पर कितना बाउंड हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7. इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसका इलेक्ट्रॉन्स को पूर्ति करना, स्टेबल बनाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको? प्लस आई इफेक्ट देगा. तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगाइए, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट लगाइए, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट लगाइए. तो स्टेबिलिटी इज सेम एज कार्बोकैटायन. तो इसका स्टेबिलिटी जो होगा वो सेम एज कार्बोकैटायन होगा. ठीक है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे करना होगा? प्लस आई इफेक्ट से करना पड़ेगा. और फ्री रेडिकल का भी प्लस आई इफेक्ट से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट से करना होगा और इसका प्लस आई इफेक्ट से करना होगा. ठीक है, तो ये हमारा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा. तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, मिक्स क्वेश्चन, विल गेट एन आइडिया. चलिए अब हम लोग कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल का हम लोग स्टेबिलिटी निकालते हैं. कंपेयरिंग स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी निकालना है. तो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बोकैटायन का, ये हमारे पास कंपाउंड है. इस पर कार्बोकैटायन यहाँ का फॉर्मेशन हुआ है. एक हमारे पास कंपाउंड इस तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है. एक हमारे पास इस तरह से ग्रुप है, CD3 लगा हुआ है. एक हमारे पास ग्रुप है यहाँ पे CT3 लगा हुआ है. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन. तो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी होता है वो किस पर निर्भर करता है? प्लस आई इफेक्ट पर निर्भर करता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. तो जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा. तो इसमें देखिए ये ग्रुप लगा, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है. यहाँ पर देखिए CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर CD3 लगा हुआ है और यहाँ पर CT3 लगा हुआ है, ट्राइटियम वाला. तो प्लस आई इफेक्ट का अगर ऑर्डर देखें हम लोग तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? ट्राइटियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का. तो सबसे पहले हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा? अगर हम लोग इसको लेते हैं, अगर हम लोग ऑर्डर लेते हैं, इसका ऑर्डर निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये लेस देन हो जाएगा इससे,
ठीक है। CH3 का जो होता है प्लस आई इफेक्ट कम होता है D3 से, तो ये कम हो जाएगा। CD3 का कम होता है T से, तो ये कम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्लस आई इफेक्ट निकालेंगे। इसी तरह हम लोग चलते हैं आगे, कार्बन आयन का एक पॉसिबल क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर F है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है। ठीक है, इसमें अगर हमको कंपेयर करना है कि इसका, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप को देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन आयन बन रहा है। तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? कार्बन आयन का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। कार्बन आयन का स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम? कार्बन आयन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट से निकालेंगे। अगर हम इसको A मानते हैं, इसको A, इसको B, इसको C, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा +3 प्लस आई इफेक्ट है। ये तो खेल खत्म हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन पे चलते हैं। तो फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन से कंपैरिजन में ज़्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। तो CH3 हमारा प्लस आई इफेक्ट है, ये तो हमारा खेल खत्म कर दिया। तो ये सबसे लास्ट होगा। अगर हम ABC में कंपैरिजन करें A, तो A सबसे ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू B, और B सबसे और C सबसे कम स्टेबल है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ठीक है, उसी तरह हमारे पास एक सवाल और है कि हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ है। हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह से, ये हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बन आयन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कार्बन आयन बनाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं फ्लोरीन, यहाँ पर लगाते हैं कार्बन आयन, यहाँ पर लगाते हैं NO2 और यहाँ लगाते हैं Cl। ठीक है, तो ये कार्बन आयन का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? माइनस आई इफेक्ट से निकालेंगे। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अगर हम माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर किसका है? तो NO2 का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, NO2 का सबसे ज़्यादा है। देन वी हैव Cn एंड देन वी हैव फ्लोरीन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको A दें, इसको B दें, इसको C दें, तो व्हाट वी गेट आंसर है NO2 का सबसे ज़्यादा होगा B, देन वी हैव Cn ग्रेटर देन C, then we have fluorine greater than A. So this is the answer for the carbon ion. So this is all for inductive effect. In the next sessions we are going to learn about hyperconjugations. So stay tuned to my channel. You will get an update soon for the next sessions. So thank you for watching my channel. Please like and subscribe it, and do not forget to share it, and have a good day, and please share बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब और लाइक को करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, गुड बाय, हैव ए गुड डे।